Welcome back everyone to physics class lecture 4, and today we will discuss about the formula V is equals to W upon Q. Okay, so we called V as potential or potential difference or voltage. It could have three names. So first of all we will define what is potential. Potential we represented with V. So I told you to for flow of current, charge must flow. So suppose there is a charge, we have a negative charge over here. Now to make it move, to make it flow, we have to apply some force on it, means we will do some work on it. So this is charge Q and we are doing work on this charge to make it flow. So what is required for potential? What is the meaning of potential? Means we are doing work to move the charge Q. So potential or voltage is defined as the V is equals to W upon Q, work done per unit charge. Voltage or potential is defined as the work done per unit charge. Now this is the formula in terms of work and charge. We have studied one more formula of voltage, V is equals to IR. Now this is the formula related to Ohm's, which is Ohm's law related to current and resistance. This formula is related to work and charge. So we can say E is equals to W upon Q, means हमें इस चार्ज को मूव करने के लिए उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल. नाउ वी हैव सीन दिस फॉर्मूला V is equals to W upon Q which says वोल्टेज और पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज. हम एक यूनिट चार्ज पर कितना वर्क कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल. द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल. नाउ suppose we have a charge over here. ओके, नाउ सपोज दिस चार्ज इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. बहुत दूर है हमसे कहीं पे और इस चार्ज को मुझे यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट P तक लाना है और इस पर मुझे वर्क करना पड़ेगा. सो व्हाट इज पोटेंशियल? नाउ वी विल डिफाइन पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड डेफिनेशन. नाउ पोटेंशियल इज द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P. Okay, or we can say potential is the work done or work required to move the charge from infinity to a particular point P. So this is the definition of potential. Now there is another term, potential difference. Potential difference formula will be same for all. Now what is potential difference? In this case when we define potential, there was a point P and initially the charge was situated at infinity, but in potential difference we will know where the charge is at, where the charge is initially. Suppose the charge is at P2 point, now we want to move it to the point P1. Okay, so we have to do work on charge to move it from P2 to P1. So what is potential difference? Potential difference, so we define potential difference as the work done to move a unit charge from one point to other point. Okay, work required to move the charge from one point to other point. So we define that the potential difference is the work done required to move a charge from one point to another point. So यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. सपोज यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए हमें W वर्क करना पड़ा तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, वर्क डन हमने किया W अपॉन Q. सपोज ये चार्ज Q था तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q. नाउ देयर इज थर्ड टर्म विच इज वोल्टेज. वोल्टेज हम पोटेंशियल को भी बोल सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को भी बोल सकते हैं. आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशंस याद रखनी है अलग अलग, बाकी सब कुछ सेम चलेगा. न्यूमेरिकल्स में सब कुछ सेम होगा, ठीक है. सो वोल्टेज, हम वोल्टेज को क्या डिफाइन कर सकते हैं? हम सिंपली वोल्टेज को डिफाइन कर सकते हैं वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तीनों टर्म्स सेम है, सिर्फ डेफिनेशंस अलग हैं, फॉर्मूला तीनों के लिए सेम है. नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल नंबर 12.2.
आपको मैंने जो PDF फाइल प्रोवाइड की है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, उसमें आप एग्जाम्पल नंबर 12.2 को रेफर कर सकते हैं. सो व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन. सो वी नीड टू कैलकुलेट वर्क. W इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलॉम. Q is equals to 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volts. So potential, I am writing potential difference as PD in a short form. PD is given as 12 volt. So we want to calculate work, charge is given and potential difference is given. So we know that potential difference is equals to W upon Q. So we need to calculate work. Work will be equal to potential difference multiplied by charge Q. So what is potential difference? What is the value? 12 multiplied by Q. Q is charge, which is 2 coulomb. So it will be 12 into 2, which is going to be 24. Now we have calculated work, and the unit of work is joule. So 24 joule work is required to move 2 coulomb of charge between a potential difference of 12 volt. अगर हम फिजिकली थोड़ा सा प्रैक्टिकली ट्राई करके देखें, समझने की कोशिश करें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं. सपोज करिए हमारे पास 2 वाटर टैंक है. ओके, एक वाटर टैंक फुल है और एक वाटर टैंक एम्प्टी है. दिस इज फुल एंड दिस इज एम्प्टी. So if we connect both of these water tank with a pipe and open the tap, what will happen? The water present here will start to flow in this tank, and it will flow continuously until and unless the charge or the voltage is same. मीन्स दोनों में पानी का लेवल सेम हो जाएगा, तब तक ये फ्लो होगा. सपोज कुछ टाइम के बाद वाटर फ्लो होना स्टार्ट हुआ और दोनों में वाटर का लेवल सेम हो जाएगा. अगर हमने इनको ऐड कर दिया है तो ऐसे इनका वाटर लेवल सेम हो जाएगा. तो हमने क्या देखा, जब यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा था, सपोज इसके अंदर हमने ज़्यादा वोल्टेज है और इसके अंदर 0 वोल्ट था. ठीक है, तो जब ज़्यादा वोल्ट था, ज़्यादा वोल्ट की तरफ से चार्ज ने इधर कम वोल्ट की तरफ फ्लो होना स्टार्ट किया. सपोज एक तरफ था 12 वोल्ट और एक तरफ था 0 वोल्ट. तो अगर हम इन्हें वायर से कनेक्ट कर दें तो यहाँ से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस साइड. ठीक है, चार्ज फ्लो होगा मीन्स करंट फ्लो होगा. तो वो हम देखेंगे करंट की डायरेक्शन क्या होगी. अभी यहाँ पर आप जस्ट इसको कंसिडर करिए कॉन्सेप्ट को कि होगा क्या अगर हमने एक हायर वोल्टेज और हायर पोटेंशियल को एक लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया है तो क्या होगा. अगर हमने एक हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट किया है वायर के थ्रू, तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहा है. कुछ टाइम के बाद जब इन दोनों का पोटेंशियल, दोनों में वाटर लेवल सेम हो जाएगा तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, और चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट भी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि चार्ज फ्लो ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, ये होता है फिजिकल मीनिंग अगर हम रिलेट करें प्रैक्टिकली. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्किट डायग्राम. वी नो दैट अ सर्किट डायग्राम और एन इलेक्ट्रिक सर्किट consist of a cell or a battery, some electronic components, a switch, and maybe some there are other devices. But we represent all these things with symbols because we are talking about diagram, circuit diagram. So we will draw a diagram of the circuit. So how we can represent electrical components, batteries, and every other thing in a diagram, in a circuit diagram. So what we do is there are some components which we represent with symbols. Now we must know these symbols. First of all, we will know about cell. We will need a cell. Cell is a voltage source. Okay, so what is the symbol of cell? Now this could be the symbol. Now make sure you draw two parallel lines in which one is bigger and one is smaller. The bigger one represents the positive terminal and the smaller one represents the negative terminal. So this is the symbol of a cell. It could be represented as
इन दिस मैनर. ओके, सो इन दोनों में से कोई भी हम एक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल इज नेगेटिव. इन दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज बैटरी. हाउ वी रिप्रेजेंट अ बैटरी. नाउ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स. अगर हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो वो बैटरी बन जाती है. ओके, सो हाउ वी रिप्रेजेंट बैटरी. नाउ सपोज वी हैव दिस cell. I want to connect two cells. Okay, so suppose this is the positive terminal and this is the now we know this is the positive terminal and this is the negative terminal. So what we do is we will add a battery add a cell in this point, at this point, with this polarity. पोलैरिटी, व्हाट इज़ पोलैरिटी मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव को हम कैसे ले रहे हैं. अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ऊपर नेगेटिव कर दूं और इसको ऐसे कर दूं, नेगेटिव सिंबल ऊपर आ जाए और पॉजिटिव सिंबल नीचे आ जाए, तो मैंने इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया. ओके, अभी हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. तो अगर मैंने ऐसे दो या दो से ज़्यादा सेल्स को कनेक्ट किया है तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा बैटरी. अ बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स. ओके, तो ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं. अब इनको हम, अगर मैं इस बैटरी को चेंज कर दूं, इसमें मैं नेगेटिव टर्मिनल ऊपर लगा दूं और इसमें नेगेटिव को ऊपर लगा दूं और पॉजिटिव टर्मिनल को नीचे लगा दूं, तो क्या इफेक्ट होगा वो अभी हम आगे देखेंगे. ठीक है, अभी हम जस्ट सिंबल पढ़ रहे हैं क्या क्या है. नाउ नेक्स्ट सिंबल इज अ स्विच और प्लग की. ठीक है, अगर हम स्विच ले रहे हैं या फिर प्लग की ले रहे हैं, ठीक है, इसमें दो केसेस हो सकते हैं. हम स्विच को ऑन करते हैं या फिर ऑफ करते हैं. सबसे पहला हम स्विच या फिर प्लग की को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से. ठीक है, अब हम ऑन ऑफ इसमें डिस्कस करेंगे. अब अगर इसमें मैंने एक डॉट लगा दिया तो ये हो गया एक ऑन स्विच. अगर इसमें मैंने डॉट नहीं लगाया तो ये हो गया एक ऑफ स्विच. दिस इज ना ऑफ स्विच. ओके, दो ही कंडीशंस हो सकती हैं. स्विच कुड बी ऑन और ऑफ. ओके, सो ये दो कंडीशंस हो सकती हैं. एक और सिंबल होता है स्विच का, वो होता है ये. नाउ दिस इज एन ऑफ स्विच. और अगर इसको हम यहाँ पर दो पॉइंट्स को हम ऐसे मिला दें तो ये हो जाएगा ऑन स्विच. ये ऑन है. अगर मैं इस वायर को यहाँ से हटा के ऊपर कर दूंगा वापस और इस कंडीशन में आ जाएगा तो ये, क्योंकि यहाँ से इसने स्विच को, इसने वायर को ब्रेक कर दिया तो ये ऑफ हो जाएगा. और इसने यहाँ पर इसको शॉर्ट कर दिया है, मिक्स मिला दिया है, तो ये ऑन हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज सिंबल इज फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब. वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक बल्ब विद दिस सिंबल. ओके, now another symbol for resistor, we have this symbol for resistor. Okay, if we are making a terminals and then we are making a zigzag line over here, then that it means we are representing a resistor. Now there is a symbol for variable resistor or rheostat. We call it as a variable resistor or rheostat. Variable resistor means हम इसकी जो वैल्यू है उसको वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. जो रेजिस्टेंस मैंने आपको एक वीडियो में दिखाए थे वो फिक्स्ड रेजिस्टर थे. वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टर. ओके, बट देर आर सम रेजिस्टर विच वी कैन वेरी. सो उसके लिए सिंबल क्या है, उसके लिए हम सिंपल एक जिगजैग लाइन बना के रेजिस्टर बनाएंगे. उसके ऊपर हम ऐसे एरो बना सकते हैं या फिर ये सिंबल बना सकते हैं कुछ इस तरीके से. हम जिगजैग लाइन बना के उसको कट करके एक एरो बना सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एमीटर. एमीटर, वी यूज एमीटर टू मेजर करंट, द अमाउंट ऑफ करंट, टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट. सो उसके लिए सिंबल है, हम एक सर्कल बना के उसके बीच में अगर ए लिख दें तो वो एमीटर रिप्रेजेंट करता है. अनदर सिंबल फॉर वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर वोल्टेज. ओके, नाउ वी रिप्रेजेंट वोल्ट मीटर विद दिस सिंबल. We just draw a circle and if we write V inside it, then it represents a voltmeter. Now the next symbol is for wire joint. Suppose we want to join two wires. Now suppose this is one wire and this is another wire. Now I want to show by symbol that these two wires are joined. So we will make a dot here. It is representing this is a wire joint. Now suppose two wires are crossing each other. Okay, but they are not joined together. So what we do is we make the wire one and
during the making of wire 2 we make a jump representing that this wire is not connected to this wire. Okay, so this is wire crossing without joining.